हालेलुया। परमेश्वर आपको गहराई में लेके जाता है, जाना चाहता है। आप जिस स्तर पर हैं वहीं पे मत रहिए। You have to rise। जब तक नदी के साथ एक कैनाल जुड़ नहीं जाता है तब तक खेत तक पानी नहीं पहुंचता है। आप कितने भी अच्छे बीज बोएं, आप कितने भी हल चलाएं, लेकिन जब तक पानी वहां तक नहीं पहुंच जाता है तब तक बढ़ोतरी नहीं होएगा, डेवलपमेंट नहीं होएगा। इन द सेम वे आप कितना भी मेहनत करें, जब तक आराधना के द्वारा प्रभु के साथ हमारे दिल और हृदय मिल नहीं जाते हैं, उसका पानी, उसका ब्रेक थ्रू उस खेत तक नहीं पहुंच जाता है। दैट यू मे प्रॉस्पर, दैट आप ऊपर आ सकें। आमेन। अगर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसका बहुतायत का आशीष, उसका बहुतायत का उपस्थिति बहने लगता है। You are praying for the own house. Yes, Pastor. But you don't have faith it can come. Yes, Pastor. Tell me. If it is wrong, you tell me it's wrong. No, it's right. You are not getting guts to pray also for the own house. Yes. Is it in line with what I'm saying? Is it in line? Yes, Pastor. You say ನಮ್ಗೆಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯ. What today actually why I'm not able to continue is God said he will unlock. Amen. But from the beginning I'm trying, you are not getting ready for the unlock. You know what is unlock? For you it is impossible. When you look around it is impossible. But God can do it. God, yes. For you free. Amen. Sit down, it's okay, you can sit and answer me. Today if we pray, I see it will be unlocked. Even now it is difficult for you to believe, even as I speak it. But I tell you, you will stand here and testify. Amen. Yes. You will. If you walk with God as you're walking with Him now, I want you to understand this. मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। अगर आप दिल से प्रभु को अपने आप को सौंपे ना, दिल ना, it will start unlocking. वो अनलॉक होना चालू हो जाता है। आप सोचते भी नहीं होंगे कि इस तरह ये जुड़ के आएगा आपके लिए, बिल्कुल उस तरह वो जुड़ के आएगा मिलके। You with me? I tell you, it is being released. It is being released. Even as I'm speaking, it is being released. जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी वक्त आपके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। You know, sister, can you stand up, sister? Am I right what I'm saying? Because I want to see. 15 दिन पहले सिस्टर रोती हुई आई, उसको कंट्रोल भी नहीं हो रहा था, कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने बोला रोको, कुछ नहीं होगा, बोलिए आप। मालूम है क्या होगा? पहले इनको प्रिंसिपल बना दिया गया, बाद में हटा दिया गया ना। आमेन। और इनको इतना इंसल्ट फील हुआ कि जब वो मंडली में आए तो बोलने के लिए भी वो झिझक रही थी, मतलब बोलने के लिए भी उनको इंसल्ट फील हो रहा था, बहुत रो रहे थे। और जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने बोला पूरा कहानी मत बताइए, आप गो इन पीस, परमेश्वर की शांति में घर जाइए। परमेश्वर हमें न्याय देगा ही न्याय देगा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। एंड आई वेंट टू द लॉर्ड एंड आई बिगैन टू प्रे, वेयर इज योर जस्टिस? वेयर इज योर जस्टिस? लॉर्ड, वेयर इज योर जस्टिस? प्रभु आपका न्याय चाहिए। आमेन। बिना रिक्वेस्ट किए हुए, बिना इन्फ्लुएंस का, बिना कोई मिनिस्टर का, बिना कोई सुपीरियर का
वापस लेटर आता है सिस्टर 3 days I got it, that answer. Tell Within me. 3 days. Within a 3 days. in 3 days. Sundays you told us, Monday, Tuesday, Wednesday. I got it same position, I came back. Wednesday she came back to her position. बुधवार के दिन वापस प्रिंसिपल की कुर्सी पे वापस आ गई. But during that day, God has made me to stand in somewhere else. But He did not came into down on the steps. Hold the During that mouth. time also. Hold your mic close to mouth. Okay. During that time also, I was God has made me to place in some other place. I should not come down. I was in the officer as a documentary officer as a in a Jain engineering college. God is a really great God. He makes my children to give in the night, even during sleep also. He will provide his whatever she wants, whatever I want, whatever we all want. So everything will be given by the God. Amen. 3 days, right? It was restored back. Thank you, sister. Sit down. You place your faith here. It can happen. It can never happen. I want to tell you. You begin to say, somebody said like this: closed mouth is a closed destiny. Closed mouth is a closed destiny. जो ज़ुबान बंद है, उसकी दिशा बंद है, उसकी डेस्टिनी बंद है. You know why? Because Christians speak their destiny. क्योंकि हमें मुंह खोल के हमारा डेस्टिनी हम बोलते हैं. You see, you still don't want to speak. When you speak your destiny, the Lord brings your destiny. Closed mouth is a closed destiny. I want to tell you this morning, trust Him. Your faith is going down. Don't put it down. Here the miracles are beginning. Here the miracles are beginning. I'm telling you, here the miracles are beginning. Previous Sunday I went to Goa church. Saturday I was praying for a girl who's little. Even if she drinks water, she's going and vomiting. थोड़ा पानी भी पीती है तो जाके उसको उल्टी हो रहा है. वो लोग फोन करके रोने लगे, पास्टर हमको क्या समझ, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना है. जब प्रभु के सामने प्रार्थना के लिए घुटने टेका तो प्रभु ने बोला, जिस वक्त तू संडे वो चर्च आ रही है, और मुझे विश्वास भी नहीं था कि वो संडे आएगी, लेकिन प्रभु ने बोला कि संडे वो चर्च आ रही है, और संडे चर्च आने के बाद जिस वक्त तू उसके सर पे ऊपर हाथ रख के प्रेयर करेगा, मेरी चंगाई उसके ऊपर बह आएगी. लेकिन जब वहां पे गया मैं संडे, जब मैंने सर्विस में गया, कभी कभी हम अपने दिमाग से चलते हैं. गॉड स्पीक्स टू द लिविंग. परमेश्वर जीवित से बात करता है. कई बार मैं देखता हूं कि मंडली में हम अलग हैं, अपना स्टेटस में हम अलग हैं, अपने मोबाइल के स्टेटस में हम अलग हैं. मैं आपसे कह रहा हूं, अपना जिंदगी को सीधा बनाइए. अंदर एक बाहर एक मत कीजिए. क्योंकि कई बार मैं देखता हूं विश्वासी मंडली में एक तरह रहते हैं, हम बाहर एक तरह रहते हैं. लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आज सुबह की आंखों में आंखें डाल कर कह रहा हूं, आपका जीवित परमेश्वर आपको देख रहा है. आपका जीवित परमेश्वर आपको देख रहा है. डोंट लिव टू कैटेगरी लाइफ. दो कैटेगरी का जिंदगी मत जिए. क्योंकि जब परमेश्वर काम करना चालू किया है, क्योंकि जब मैं ऐसा कंडीशन कुछ बोलता हूं, उस वक्त सब लोग ठंडा रहते हैं. बाद में आके बोलते हैं, पास्टर ने एग्जैक्टली जो मेरे दिल में था वही बोला. अरे इधर जब अभिषेक में है तभी बोलो ना. क्योंकि जब अभिषेक में है तो ताला खुलता है, और जब ताला खुलता है तो चमत्कार रिलीज होता है. कोई अपने बगल वालों से बोलिए, मैं ये चर्च को बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं आता हूं. क्विकली मैं यहां पे परमेश्वर से बात करने के लिए आता हूं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और मैंने क्या गलती कर दिया कि लोगों का मन रखने के लिए मैंने स्टेज से सबको बोला कि बच्चे के लिए प्रार्थना करें. क्योंकि अगर एक ग्लास पानी पी रही है तो भी 10 बार वोमिटिंग उसको हो रहा है. डॉक्टर सलाइन लगा रहा है, मेडिसिन दे रहा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. तो हमने क्या किया कि हमने प्रार्थना किया. प्रार्थना करने के बावजूद मैं देख रहा हूं कि वो पीछे की तरफ से फिर से वॉमिटिंग के लिए गई. तभी भी मुझे समझ में नहीं आया. सर्विस के अंत में परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि मैंने तुझसे कहा था कि वो उस मंडली में आएगी. जब वो मंडली में आएगी, आपको जाकर उसके सर पे हाथ रखना है.
क्योंकि उसके शरीर में कुछ होने वाला है। और जब आप हाथ रखोगे तो उसी वक्त तो बंद हो जाएगा। तो मैं सर्विस खत्म होने के बाद उस लड़के के पास गया, अपने हाथ उसके सर पर रखा और मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दिया कि पूरी तरह से चंगा हो जावे। और मालूम है क्या हो गया? उसने कान बंद कर लिए, अपने कान बंद कर लिया। तो मैंने कान को हटाया और कान में बोला, जो कुछ भी अंदर है यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाओ, तुम्हारा दिन खत्म हो गया। इस बच्चे को मैं यीशु मसीह के नाम से जिंदगी और बहुतायत का जिंदगी रिलीज करता हूं। और जैसे ही प्रेयर खत्म हुआ, वहां पे मौजूद भाई बहनों से कहा इसको प्रेयर करके एक गिलास पानी पिलाओ, ये ठीक हो गई है। उन्होंने पानी लाया, पिलाया। उसी वक्त से कल मैंने वापस फोन किया 15 दिन के बाद। कल मैंने 15 दिन के बाद वापस फोन किया, बच्ची कैसी है? उस पास उन्होंने वो क्या बोलते मालूम है? आप चाहे तो फोन नंबर दे देता हूं, पूछ लीजिए। क्यों मैं इतना स्ट्रेट आपसे बात कर रहा हूं? आपका चमत्कार कोई और नहीं रोक रहा है, बल्कि आप खुद रोक रहे हो। आपका बढ़ोतरी कोई और नहीं रोक रहा है, बल्कि आप खुद रोक रहे हो। मालूम है क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये नहीं होगा, और मैं आपसे कह रहा हूं ये होगा। और क्योंकि आप सोचते हैं कि नहीं होगा, इसलिए आप मैच में बैट हाथ में भी नहीं ले रहे हैं। जबकि मैं कह रहा हूं तू सिक्सर मारेगा, लेकिन तू बोलता है नहीं होगा, इसलिए बैट भी नहीं पकड़ते हैं आप। बट लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इसीलिए किसी ने इस तरह बोला, हम में कहीं लोग अविश्वासी विश्वासी हैं, जो अविश्वास में विश्वास करते हैं ये नहीं होगा बोल के। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु कर रहा है। अगर तुझसे नहीं कर रहा है, तू बैट नहीं पकड़ रहा है, तो उसको सिक्सर मारने के लिए कोई मिल जाएंगे, क्योंकि मारने वाला तू नहीं है, वो है। तुझे तो सिर्फ कोफन पकड़ना है, पत्थर डालना है, गोलायत को गिराने वाला वो है। लेकिन हम लोग कोफन को भी पकड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि गोलायत नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा, हाँ नहीं गिरेगा, लेकिन जब परमेश्वर तेरे साथ बगल में हो तो 10 बार गिरेगा। 10 बार उठेगा तो भी 10 बार गिरेगा। But if you don't build your faith, if you don't pull up yourself in your faith, you'll not be able to take up what God has kept for you. लेकिन जब तक आप विश्वास में खड़े नहीं हो जाते, तब तक उसने जो आपके लिए रखा है वो आप ले नहीं पाएंगे। 15 दिन के बाद जब मैंने फोन किया तो भाई बोलते हैं, पास्टर उस दिन से अब तक वापस उसको वॉमिटिंग नहीं हुआ। ना डॉक्टर को समझ में आता है कि क्यों नहीं हुआ, ना इनको समझ में आ रहा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले हो रहा था। इतना दिल दुखता है मेरा, कभी मुझे ऐसा लग गया था कि मैं बंद कर दूं ये तमाशा। मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग मंडली में एक तरह रहते हैं, बाहर एक तरह रहते हैं। हमारा स्टेटस दिखा रहे हैं कि हम क्या हैं। थैंक गॉड फॉर व्हाट्सएप समटाइम्स। कहीं स्टेटस को मैंने म्यूट कर दिया है। म्यूट मतलब यू कांट सी एनी मोर दो स्टेटस, इट विल नॉट गिव यू अलर्ट। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे शर्मिंदगी होने लगी है कि यही लोग हैं जो संडे आके आराधना करते हैं। क्या ये यही लोग हैं जिसका स्टेटस मैं अभी देख रहा हूं कि जो संडे हमारे मंडली में आके प्रभु की आराधना करते हैं? और हम सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वो ऑफरिंग देते हैं। मैंने उन नोटिफिकेशन को भी म्यूट कर दिया, नहीं मांगता है मुझे को, देखने को भी नहीं मांगता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरे, लेकिन मैं नहीं देखना चाहता हूं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम अंदर एक रहते हैं, बाहर एक रहते हैं। लेकिन मैं आज आपसे बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर मुर्दों से बात नहीं करते हैं, परमेश्वर जिंदे से बात करते हैं। अगर आपका परमेश्वर के लिए जिंदगी जिंदा रहेगा तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। नहीं तो आप बोलेंगे परमेश्वर नहीं बात करता, इसका मतलब यह नहीं कि वो बात नहीं करता, वो उनसे बात करता है जो उसके लिए जीवित है। पता नहीं आप सुन रहे हैं नहीं? कई बार मैंने परमेश्वर से, जो लोग फोन पे बात करते हैं उनके लिए भी मिनिस्ट्री हो जाता है। कई बार मैंने सोचा मंडली में जब बहना चाहता हूं तो क्यों रोक टोक आता है, तो परमेश्वर बार बार मुझे याद दिलाते हैं क्योंकि विश्वास नहीं है। कल एक लड़की ने फोन किया, मैसेज डाला, आज सुबह ज्योति के साथ मैं बांट रहा था उसके बारे में। ज्योति के साथ उसका बातचीत हो चुका है, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या बात हुआ मुझे मालूम नहीं, मैं क्योंकि मैं प्रार्थना का कमरे में हूं। बीच बीच में मैं मोबाइल उठाता हूं, कुछ आंसर्स देता हूं, फिर से बंद करके प्रेयर में लग जाता हूं, ये मेरा हैबिट है। तो मैंने अपना मोबाइल खोला, बीच में कुछ मैसेज देखने के लिए, क्या कहीं कोई प्रेयर रिक्वेस्ट तो नहीं भेजा। तो ये लड़की मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती है, अन्ना मुझे आपके साथ 2 मिनट बात करना है। मैंने बोला सिर्फ मैं व्हाट्सएप पे आंसर दे सकता हूं, क्योंकि फिलहाल मैं अन्य भाषा में परमेश्वर के साथ इतना जुड़ा हूं कि मैं डर रहा हूं कि अगर मैं बात करूंगा तो उस प्लगइन से बाहर आ जाऊंगा। जो भी कहना है व्हाट्सएप पे भेजो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जैसे मैं वो बोला, तुरंत परमेश्वर की आत्मा बोलता है उसको बोल वो कौन है, उसको पूछ वो कौन है। तो मैं टाइप करता हूं कि हु इज ही, वो कौन है। पता नहीं आप
वो कौन है? तो तुरंत बोलती है अन्ना, लंबा सा अन्ना। मैंने बोला व्हाट? आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने बोला बात करने का नहीं, मैंने पूछा हु इज ही? अन्ना, ही इज अ वर्शिप लीडर इन अ चर्च। हु इज ही? कौन था वो? और प्रभु कहते हैं उतना ही पूछो। पूछो कौन था? मैंने बोला कौन है वो? उसको बोलते हो मेरा वर्शिप टीम में। मैंने बोला उसका नाम यस से चालू होता है। अन्ना, बिग विद अ क्राइंग स्माइली। मैं बोला अब और थोड़ा चुप रहेगी तो शायद आत्मा और गहराई में जाएगा। तू बोलना चाहेगी क्या? अन्ना, उसका सेकंड नाम यस से चालू होता है। मैं बोला बस उसका पूरा नाम बताता हूं। मैंने पूरा नाम टाइप किया। रोने लगी। और मैं उसको सेवा कार्य करने के बाद मोबाइल बगल में रख कर प्रेयर करने लगा। प्रभु, लोग बाहर के चर्च के लोग मैसेज भेजते हैं और मैसेज के द्वारा भी वो तू प्रॉफिटिकली उनके साथ बात कर रहा है, लेकिन संडे मुझे इतना तकलीफ क्यों होता है अपने लोगों के बीच में? मालूम है पवित्र आत्मा का गवाही क्या है इसके बारे में? वो कहते हैं जब वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, दरवाजा नहीं खोलते हैं, उनके अविश्वास के वजह से मैं बह नहीं पाता हूं। You with me? गुस्सा नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे तरस आता है कि इतना खूबी का जिंदगी आप ऐसे गवा रहे हैं बिना परमेश्वर के पाए हुए। और परमेश्वर इतना सुंदर तरह से उसको अगुवाई किया। वो बोलते मेरा सब प्रश्नों का मुझे उत्तर मिल गया। आई एम श्योर ऑफ व्हाट गॉड इज लीडिंग मी टू। लेकिन जब तक आप दिल आराधना में आराधना कर रहे हैं, लेकिन आप में से कई लोगों का हृदय कहीं और, इसलिए नहीं कि अनॉइंटिंग नहीं है, उसी वक्त बाकी लोग रो रहे हैं। मालूम है आपको क्यों रोना नहीं? क्योंकि आप प्लग इन नहीं हो पा रहे हैं। और हर संडे में देखता हूं कि चलो जाने दो, वचन बोल के निकल जाते हैं, लेकिन स्विमिंग वहीं के वहीं पकड़ गया, गहराई में जा ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर गहराई में जाना है, बदलना है, जिंदगी मतलब मैं कैरेक्टर बदलने के बारे में नहीं कह रहा हूं। आपका स्थान, आपका मान, आपका बढ़ोतरी, आपका हर एक चीज जो आपकी जिंदगी में वो जो इंप्रूवमेंट, जो प्रोग्रेस, जो प्रमोशन आना चाहिए, वो सब रुक जाता है। बट इफ यू कैन ओपन अप योरसेल्फ, इफ यू कैन लिसन टू हिम, I want to tell you there's so many things that I want to open up for you. A big ship देखा है? ship नहीं देखा है? हाँ, कुछ तो बोलो। You have seen a ship की कितने भी बड़ा क्यों ना हो शिप, उस शिप की दिशा एक छोटा सा, हिंदी में क्या बोलते हैं, रडर, एक कन्नड़ದಲ್ಲಿ चुक्काणी अंतिवे, उसके शिप के पीछे क्यों ना उसका इंजन कितना बड़ा हो, कितना पावरफुल उसका स्पीड हो, लेकिन उसका मुड़ने का जो है, पीछे शिप के अंदर पानी में पिछले के हिस्से में एक छोटा सा रडर रहता है। वो लेफ्ट साइड घूमा तो ये भी इस तरफ घूम जाता है, अगर वो राइट साइड घूमा तो पूरा इतना बड़ा शिप एक छोटा सा रडर से अपना दिशा बदल देता है। आपको ये आप समझ रहे हैं? लेकिन बिल्कुल उसी तरह इतना बड़ा जिंदगी, मालूम है, एक छोटा सी आशा, वन स्मॉल डिजायर, एक छोटी सी आशा, एक छोटा सा डिजायर जो है पूरा जिंदगी का दिशा बदल देता है। अगर हमारी डिजायर, आशा सही है तो मैं बोलता हूं इतना बदल जाता है वो दिशा उसका कि पूरा जीरो से टोटली ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर वो आशा गलत हो, ऊपर से टोटली जीरो पे आ जाते हैं। एक छोटा सा डिजायर, इतनी बड़ी जिंदगी टिका हुआ है मन का एक छोटा सी आशा पे। डिजायर इज नॉट नॉलेज। आशा जो है ना, उसको अकल नहीं है। मिस्टर आशा को अकल ही नहीं है। अकल करेक्ट रहेगा हिंदी में, अकल बुद्धिगु आशೆಗೂ ತೀರದ ವೈರತ್ವ।
आशा और बुद्धि के बीच में हजारों सालों से युद्ध चल रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ है। आशा को अकल नहीं है, लेकिन अकल आशा की दिशा बदल सकती है। I don't know if you're thinking about it. Desire does not have a knowledge, but a knowledge can change the direction of desire. And most of the people choose desire above knowledge. बहुत लोग गलती कहां करते हैं? ज्ञान को चुनने के बजाय, अकल को चुनने के बजाय आशा से निकल पड़ते हैं। पता है आप समझ रहे हैं? थोड़ा एक्टिंग के बारे में खांसी है, अभी अभी ठीक होके 2 दिन हुआ, अकल कहता है आइसक्रीम मत खाओ, आशा बोलता है थोड़ा खाए तो कुछ नहीं होगा। आशा है, अकल क्या है? इसलिए उनको बोलते हैं अकल के मारा। वो अकल के मारा है। जिनको आशा के ऊपर काबू नहीं होता है वो अकल से मारे हुए हैं। मां बोलती रहती उसके ऊपर मत देख, उसके ऊपर आशा मत देख, लेकिन उसको वही चाहिए। उसके बगल में ऑफिसर रहेगा, नहीं मांगता, मेरे को यही चाहिए। और ऊपर से कोट करता है, लव इज ब्लाइंड, लव इज नॉट ब्लाइंड, लव इज नॉट ओनली ब्लाइंड, लव इज फूलिश, लव इज मेंटल। अंडरस्टैंड? उसको आंखें कभी खोलते हैं मालूम है? जब पूरी आशा खत्म होता है, ज्ञान वापस आता है ना, तब मुड़ के बोलती है मैंने क्या कर दिया जिंदगी में, लेट हो गया, गाड़ी आगे बढ़ाओ। यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? नॉलेज इज सुप्रीम, डिजायर इज फूलिश। ज्ञान जो है वो बेहतरीन है। इसलिए बुक ऑफ प्रॉब्स क्या होता है? जोर से बोलो। नीति वचन। नीति वचन कहता है कि ज्ञान से प्रेम करो, लेकिन आशा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस। हम लोग जब आशा के काबू में आते हैं, ज्ञान बोलता रहता है नहीं यार तू मर जाएगा, हम उसको बोलते हैं तू चुप बैठ, कितना अच्छा है, उसके दांत देख, उसका कलर देख। और 5 साल के बाद जब कलर उतर जाता है ना, तो ज्ञान वापस आता है। कहीं गया नहीं, वो अंदर ही था, हमने ज्ञान को दबा दिया था। I don't know if you're still with me. अगर हम छूट दे देते हैं तो आशा ताकतवर बन जाता है, ज्ञान से भी ताकतवर बन जाता है। जब आशा ताकतवर बन जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान, नॉलेज जो है वीक बन गया, लेकिन हमने उसको मैदान में नहीं उतारा, हमने उसको छोड़ दिया। चाहे ही आशा को बहुत ताकत क्यों ना हो, लेकिन वो मूर्ख है। मूर्ख को भी ताकत होता है ना? मूर्ख को भी ताकत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वो ताकत का मतलब ये नहीं होता है कि वो अच्छा रहेगा, वो खुद का बर्बादी कर लेगा। आई होप यू आर थिंकिंग ऑन दिस। जब हम आशा को ही सब कुछ बनाकर निकलने लगते हैं, नॉलेज को ठुकरा देते हैं, शायद वो आशा बहुत ताकतवर हो सकता है, लेकिन वो हमें मार देता है, हम बर्बाद हो जाते हैं। नॉलेज इज सपोज टू रूल योर विजडम, योर डिजायर। विजडम is supposed to guide your desire. हमारी आशाओं को हमारा ज्ञान अगुवाई करना चाहिए, परंतु अगर हम आशाओं के हाथ में जकड़ जाते हैं, if we submit to the desire, it brings destruction, complete destruction. एक छोटा सा फर्क बताता हूं। नॉलेज, विजडम टेल्स यू अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। ज्ञान जो है, अकल जो है, वो अगर ऐसा
करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा उसका याद दिलाते हैं, परिणाम का याद देते हैं। लेकिन आशा जो है परिणाम के बारे में सोचता नहीं है। पता नहीं आप समझ, आशा परिणाम के बारे में सोचता नहीं है क्योंकि वो मूर्ख है। ज्ञान बोलता है अभी अभी तू चंगा हुआ है, अगले हफ्ते आइसक्रीम खा लेना, क्योंकि उसको परिणाम के बारे में जानकारी है। पता नहीं आपको, आमीन। लेकिन आशा जो कहता है जो होगा वो देखा जाएगा, क्या होगा रात भर नींद तुझे नहीं आएगा। आशा परिणाम के बारे में नहीं सोचेगा, उसको अब चाहिए, अब तृप्त हो गया तो बस आगे का आगे। इसके वजह से चरित्र में सबसे बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। इसके वजह से मां बाप लहू खून की आंसू रोते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज डिजायर इज क्रूएल। क्योंकि आशा जो है उसको ममता नहीं है। मां को टुकरा सकती है अपनी आशा पूरी करने के लिए, बाप को टुकरा सकते हैं अपनी आशा पूरा करने के लिए, यीशु को टुकराते हैं अपनी आशा पूरा करने के लिए, क्योंकि आशा को ममता नहीं है। लेकिन ज्ञान को ममता है। वो बोलता है मैं ये करने से इनको दुख होगा, इनको दुख होगा, इनको दुख हो, सोचता है। इसलिए वचन कहता है ज्ञान से प्रेम करना, तेरी मां की बातों को हथेली पे रखना, क्या बोलते हैं, माथे पे बांध के रखना, क्योंकि वो तुझे अगुवाई करेंगे। लेकिन मूर्ख जो है, यानी कि जो आशा को दे देते हैं अपने मन को, उनको ना बाप का पड़ा है ना मां का पड़ा है। वो सिर्फ श्राप इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि उस क्षण के लिए उनको अपने आशा को तृप्त करना है बस। Desire is foolish, it is cruel, it is selfish. आशा जो है स्वार्थी है, उसको ना अपना दोस्तों का पड़ा है, I don't know if you're, उसको ना अपनी मां का पड़ा है ना अपने बाप का, उसको तो सिर्फ अपनी आशा पूरा करना है। लेकिन ज्ञान को, I don't know if you're still with me, but the wisdom, the knowledge thinks about the consequence. The desire is foolish, knowledge is wise. The desire is cruel, knowledge has mercy, wisdom has mercy. The desire is selfish, knowledge is unselfish. I don't know if you're still with me. Amen. I said amen. Now I wanted to give an example, but I see our hearts need to be prepared still so much. But I want to tell you one thing. Choose wisdom and live. ज्ञान को चुने और जिए, ज्ञान को चुन ले और जिए, ना बल्कि आशाओं के हाथ में अपने कब्जा दे दे। Many people lose the blessings because of the wrong desires. एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एसाव आ रहा है, याकूब, दोनों भाई, याकूब और एसाव दो भाई। याकूब स्ट्यूज पका रहे हैं, एसाव आता है, भूख लगा है, पूरा दिन वो शिकार करने के लिए देखा, एक भी शिकार नहीं मिला। अभी क्या वो, उसको पानी भी नहीं मिला। जैसे आया, जो शिकार का मटन खाने वाला, जो इतना अच्छा टेस्टी खाने वाला, जब कुछ भी नहीं मिला तो घर का वेजिटेबल इतना सुंदर दिखा। सुन रहे हैं? घर का वेजिटेबल इतना सुंदर दिखा कि वचन कहता है उसने याकूब से पूछा मुझे थोड़ा खाने के लिए दो। याकूब कहते हैं मैं दे दूंगा, लेकिन पहले तू पहला अपना ज्येष्ठ होने का, यानी कि पहला पुत्र होने का अधिकार मुझे दे दो, क्योंकि याकूब छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है।
आशा को डिजायर डजंट हैव सेल्फ कंट्रोल. डिजायर डजंट हैव सेल्फ कंट्रोल. आशा को व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल? स्वनियंत्रण. स्वनियंत्रण नहीं है आशा का. वो बोला मुझे क्या करना है, ज्येष्ठ तू ले ले, मेरे को पहले खाने एक ही खाना, एक खाना छोड़ देने से वो नहीं मरता था. एक खाना. देखिए परमेश्वर के नजर में इतना बुरा लगा, मालूम है क्यों? क्योंकि अगर सोचो, आप है मेरे साथ, आप सोचो क्या परमेश्वर चाहते थे, अगर परमेश्वर चाहने से क्या याकूब को ज्येष्ठ नहीं बना सकते थे? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था जब ये ज्येष्ठ बना था, इसको ज्येष्ठ किसने बनाया? इसको पहला पुत्र किसने बनाया? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जानबूझकर इसको पहला बेटा बनाया. इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के दिल में कुछ प्लान है ना इसको पहला बेटा बनाने के लिए. सुन मेरे बात सुन मेरे भाई, मेरे बात सुन मेरी बेटी, मेरे बात सुन मेरे बेटा, मेरा भाई, मेरे बहन, मेरे बात सुन. जहां पे जो तू है ना उसको ठुकरा मत, क्योंकि प्रभु जानबूझकर तुझे वहां रखा है, क्योंकि वो जानता है उसके दिल में कुछ तो प्लान है. और इसने क्या कर दिया? प्रभु अपने, मैं कहता हूं इसने अपना ज्येष्ठ होने का, अपना पहला पुत्र होने का नहीं बेचा. इसने परमेश्वर की योजना को बेच दिया. He did not sell his right of birth. He sold the plan of God. You're understanding what I'm saying? जब आप अपने हालात से भाग जाते हैं ना, जब आप आशा से बेचते हैं, परमेश्वर की योजना को बेच रहे हैं. आशा परमेश्वर की योजना का भी ख्याल नहीं रखता है. डिजायर डज नॉट इवन रिस्पेक्ट द प्लान ऑफ गॉड. यही गलती मैंने भी अपनी जिंदगी से किया था. अब प्रभु से बोला मैंने, क्यों ना मेरा ये शरीर कितना भी लालसा में आए, मैं इसको रौंद कर अपने कब्जे में करके इसको पांव तले डाल के आत्मा की इच्छा की पूरा करूंगा. क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि आशा जो है परमेश्वर की प्लान को भी इज्जत नहीं देता है, क्योंकि वो सेल्फिश होता है. Because desire is selfish. I hope you're still with me. जो पास्टर अपना रिस्पेक्ट के लिए सेल्फिश है, उसकी आशा है कि सब उसको इज्जत दे, वो अपने हाथ के नीचे काम करने वालों को ऊपर दबदबाव करता है, क्योंकि उसकी आशा है कि वही बॉस रहे. आशा. लेकिन जो पास्टर अपने आशा रखता है परमेश्वर की ओर, उसको नॉलेज है, वो अपने दिमाग से नहीं दिल से सोचता, अपने दिमाग से काम करता, अपना आत्मा से अगुवाई लेता है. वो बोलता है नहीं, यीशु मसीह ने सिखाया कि पहले सेवक बनो. वो दबदबाता नहीं है, फ्रेंड होके चलता है अपने कामगार के साथ. I don't know if you're still with me. Desire is selfish. Desire is cruel. अपने माँ बाप का भी कद्र नहीं करता है, परमेश्वर की योजना का भी कद्र नहीं करता है, उसको सिर्फ अपना पड़ा है. और जो आशा से चलाए जाते हैं वो आशा से मरते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो तलवार पकड़ता है वो तलवार से मरेगा, और वो आशा से ही मरते हैं. जिस बेटी के ऊपर उसकी आशा लालसा रहेगा वही छोड़ के भाग जाएगी. मालूम क्यों? क्योंकि उस बेटी की आशा में उसने परमेश्वर का वचन का भी कद्र नहीं किया. उसने अपने बच्चे को, अपने लाडले को परमेश्वर की वचन से भी ज्यादा प्यार किया. जबकि परमेश्वर का वचन कहता था कि तेरा बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका कान पकड़ के घर में नहीं डाला, उसको समझाया नहीं, परंतु उसको छुपा लिया. जो कोई पाप को छुपाता है आग को छुपाता है. एक दिन वो आग भड़क उठ के अपने घर को बर्बाद कर देता है. और मंडली में, इसलिए मैंने बोला यहां पे एक बात बाहर एक बात. मंडली में हम बोलते हैं आई लव द लॉर्ड माई गॉड विथ ऑल माई हार्ट, विथ ऑल माई माइंड, विथ ऑल माई स्ट्रेंथ. O Israel, you shall love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Hey Israel, तू अपने परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से प्रेम रखना. यहाँ पे हम लोग चिल्ला के बोलते हैं हाँ, लेकिन जब हम घर जाते हैं
बाहर आते हैं। आपका नॉलेज को मालूम है कि ये गलत है, लेकिन आपका आशा बोलता है ये एक बार। और हम आशा के अधीन होके ज्ञान को ठुकराते हैं और यहां पर परमेश्वर की योजना को ठुकरा बैठते हैं। आई होप यू स्टिल विथ मी, आई होप यू स्टिल विथ मी। आई एम टेलिंग यू, बिलीव इन द मिरेकल। मैं आपसे कह रहा हूं, चमत्कार में विश्वास रखना। प्रभु आपके लिए चमत्कार करने का ताकत रखते हैं। मालूम है भविष्यवाणी का अधिकार, अभिषेक कब चलता है? जब वहां बैठे हुए लोगों के मन में आता है मुझे चाहिए, ये मेरे लिए, मैं लेता हूं। जब आई रिसीव इट, जब अपने दिल खोलते हैं ना, तो भविष्यवाणी और अनलॉकिंग जो है, जो ताला खोलने का हो, बहुतायत से आपके अंदर बहने लगता है। आशा ज्ञान से भी पावरफुल हो जाता है ना, तब सिर्फ बर्बादी आने लगता है। Look at what the Bible says in book of James chapter 1 verse 14 and 15. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires, and the desires entice him. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा, अपनी ही आशा से खींचकर और फंसकर और उसमें फंसकर परीक्षा में पड़ता है, परीक्षा में पड़ जाता है। कौन खींच रहा है? अभिलाषा, आशा। The desires pull a man to sin, to be tempted, and then the desire brings him to death. उसके बाद वही आशा उसको मौत ला देता है। It brings him a death. Sister, get ready. There is a grace of mighty anointing to lead spiritually upon you. Amen. 15. Then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings death. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर चुप नहीं बैठता है, वो बड़ा होता है। अभिलाषा गर्भवती बनकर पाप को जनती है, पाप को जन्म देता है। अभिलाषा बड़े होकर पाप को जन्म देता है। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हमारा फाइनेंस मरने लगते हैं, हमारा हेल्थ मरने लगता है, हमारा शांति मरने लगता है, क्योंकि हमारी आशा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल के खत्म करता हूं, सुनिए। Psalm 37 verse 4. Psalm 37 verse 4 quickly. Delight yourself in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Wow. The Lord is not interested in killing your desires. जल्दी। भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसका 4वां वचन। हाँ। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और यहोवा को ही अपने सुख का मूल है जान ले। तेरी ज्ञान नहीं, तेरा ट्रिक्स नहीं, तेरा नॉट योर कैपेसिटी, आपका कैपेसिटी नहीं, यहोवा तेरे सुख का मूल है। I want to repeat it for you. यहोवा तेरे सुख का मूल है। तेरा खुद का ज्ञान नहीं, तेरा खुद की क्षमता नहीं, यहोवा तेरा सुख का मूल है। कोई अपने बगल वालों से बोले यहोवा तेरे सुख का। हिंदी में बहुत सुंदर लिखा गया है, यहोवा तेरा सुख का मूल है। आमीन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। मैं सोच रहा आमीन। आगे, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वह तेरे आशाओं को पूरा करेगा। तो क्यों आशा के पीछे जाता है? आशा है ना, उसको बक्से में डाल, उस आशा को बोलना तू यहीं पे बैठ, मेरा यहोवा पूरा करने वाला है। पता नहीं आता है यार, लेकिन नहीं, इनको बिरयानी खाने की आशा, कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, उसका परिणाम कुछ भी हो, आशा।
और किसी को पिकनिक की आशा, परिणाम कुछ भी हो। आशा परिणाम के बारे में सोचता नहीं है, ज्ञान परिणाम के बारे में सोचता है। आशा स्वार्थी है, ज्ञान दूसरों का ख्याल रखती है। और नीति वचन कहता है, ज्ञान से प्रेम करना वो तेरे घर को बनाएगी। लव विजडम बिकॉज विजडम विल बिल्ड योर हाउस। पत्नी को आशा, मेरा पति सिर्फ मेरे से बात करने का। ये पति बेचारा प्यार से भी किसी से बात किया, क्या जी उसके साथ क्या बात कर रहे थे यार। एक बार, दो बार, तीन बार, चारवीं बार पति सोचेगा क्या मैंने शादी करके ठीक किया क्या नहीं। आमीन। जबकि हमारा ज्ञान बोलता है, यहोवा के ऊपर तेरा विश्वास रखना, वो तो दुष्ट को तेरे डेरे के, तेरे घर के नजदीक भी आने के लिए नहीं छोड़े। ज्ञान बोलता है यहोवा पे विश्वास करना, आशा बोलते हैं नहीं पैसे पे विश्वास करना। ज्ञान बोलता है सब कुछ मिट जावे परंतु परमेश्वर का वचन 100% पूरी होगा। आमीन। क्या दावीद कभी राजा बनने का आशा रखा क्या? कहीं लिखा है दिन रात मुझे राजा बनना है, राजा बनना, राजा बनना? नहीं। उसने तो सोने का अंगूठी पहनने का भी आशा नहीं जिक्र किया। उसके मन में एक ही आशा था। उसी ने इस शाम को, इसी ने इस वचन को लिखा जो अभी अभी हमने पढ़ा। क्या कहता है वो? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। किसने लिखा ये? दावीद ने। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके मन, हम बैठे हैं मुझे वो बनना है, मुझे ये बनना है। दावीद बोलता है मुझे प्रभु का दास बनना है, मुझे प्रभु के हृदय को जीतना है, बस। मालूम है क्या हो गया? जो उसकी आशा भी नहीं था, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, तेरी आशा कितना बड़ी हो सकता है, उसके दिल में तेरे लिए ऐसी आशा है, पता नहीं आप इसको स्वीकार। तेरी आशा इतना ही, लेकिन उसके दिल में इतनी बड़ी आशा है। वो दावीद तो बोलता है अब मेरी आशा है कि प्रभु के लिए अच्छा सा गाना लिखूं। प्रभु वो देख के बोल रहा है मेरी आशा है इसको राजा बना दो। पता नहीं यार, आप समझ नहीं आएगा कहाँ यार। आमीन। राइट डिसीजन, राइट डिजायर कैन टर्न द कोर्स ऑफ योर शिप। सही आशा अपनी जिंदगी की, सही आशा अपनी जिंदगी की जहाज का पूरा दिशा बदल देता है।